सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल बजाओ। इन्फॉर्म्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो और आगे रहो। Hi everyone, I hope you all are doing well. So in the last class we already discussed about fundamental rights, important personalities and dates associated with Indian Constitution. तो मैंने कुछ MCQ, PYQ प्लस जितना भी इम्पोर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के लिए वो मैंने लाया है। तो आज तो आप लोग नहीं कर पाऊँगा, अभी फ़िलहाल बज रहा है 12:32, दैट इज़ 1 मार्च। तो मैं अपलोड कर लूँगा 1 मार्च को, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो पर, सी यू सून। Hi everyone, I hope you all are doing well. In the last class, we already have discussed about fundamental rights. So in this class, we're going to practice some MCQs which are most relevant for exam perspective. तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लासত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো চেছ কৰিছোঁ। আজি মানে MCQ অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিম, ঠিক আছে। তো আজি হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ এছ'চিয়েটেড উইথ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ডেটছ, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাবলৈ গ'লে মানে সুধিছে who first demanded for formation of Indian Constitution, ঠিক আছে। সেইটো আনসাৰটো আপোনাৰ সকলোকে ট্ৰাই কৰিব দিবলৈ ইন কমেণ্ট ছেকশ্যনত, ঠিক আছে। আৰু লেটছ জাম্প ইনটু দিছ নেক্সট কুৱেশ্যন। For the first time, British accepted demand for formation of Indian Constitution in which year? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करने के लिए जो डिमांड था, तो ब्रिटिश ने कौन सा ईयर पर फाइनली उसको एक्सेप्ट किया था, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন সুধিছে প্ৰথম মানে ব্ৰিটিছে কেতিয়া কোন বছৰত মানে ইণ্ডিয়ান ডিমাণ্ড অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো এইটো একচেপ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। অপশ্যন এত আছে অগাষ্ট অফাৰ 1940, বি CDM 1930, CDM মানে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট, চি মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্মছ 1909, মণ্টেগু চেমছৱৰ্থ ৰিফৰ্ম 1919। ট্ৰাই টু গিভ দ্য আনচাৰ। দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি এ, ঠিক আছে, অগাষ্ট অফাৰ 1940। 3 number question sum. Which of the following important personalities was absent in Constituent Assembly? মানে সুধিছে মানে অপশ্যনত দিয়া থকা মানুহবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিবিলাক কোনটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি সেইটো এবচেণ্ট আছিলে হা कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेटिया गठन होइसिले तेटिया एब्सेंट आसिले। कौन सा जो ऑप्शन पर है जो दिया गया है वो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एब्सेंट था कब? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करने के टाइम पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करने के टाइम पे कौन एब्सेंट था? BR अम्बेडकर, गांधी, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर विल बी बी महात्मा गांधी, ठीक है। 4 number question. In which year first Constituent Assembly was held? মানে সুধিছে কুৱেশ্যনত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিটো প্ৰথম কেতিয়া মানে হৈছিলে, অৰ্গেনাইজ হৈছিলে, ঠিক আছে। कब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मतलब ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946, बी 7 दिसंबर 1946, सी 8 दिसंबर 1946, डी 9 दिसंबर 1946। ट्राई टू गिव द आंसर। The right answer will be D, 9th December 1946, ঠিক আছে। 5 number question to solve. Who was first officially elected president of India? India প্রথম অফিচিয়েলি ইলেক্টেড, ঠিক আছে। ডিফাৰেণ্ট আছে ইলেক্টেড আৰু নমিনেটেডটো আপোনাৰ সকলোকে গম পায়। ইলেক্টেড মানে মানুহে ভোট কৰাৰ পিছত, ঠিক আছে, যেটো আহিব, ঠিক আছে। আৰু নমিনেটেড মানে এইটো ইলেক্টেড নহয়, মানে মানুহে এইটো মানে সিলেক্ট কৰা নহয়, ঠিক আছে। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? ए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी MN रॉय। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ऑफिशियली इलेक्टेड पूछा है, हाँ। तो राइट आंसर विल बी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पर नॉमिनेटेड पूछा होता, इलेक्टेड के जगह नॉमिनेटेड पूछा होता, तो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was first known elected প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। কিয় কাৰণে এইটো ইলেক্ট কৰিছিলে? কাৰণ হৈছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যেতিয়া গঠন হৈছিলে सबसे सीनियर मोस्ट माने मेम्बरটো आसिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जार कारण ताके माने दिया होइसिले। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था तब उस असेंबली में सबसे जो सीनियर था वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। उसके वजह से उसको फर्स्ट नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के तौर पर बनाया गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनটো কোনে ইন্ট্রোডিউস কৰিছিলে? আপোনাৰ সকলোকে গম পায় ক্লাছত মানে প্ৰথম মানে ডিসকাস কৰিছিলোঁ অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশ্যনটো কি হয়। মানে এটা ফ্ৰেম, ঠিক আছে, যেনেকৈ মানে এটা বহি পঢ়িবৰ আগতে কি কৰা হয়, চেপ্টাৰবিলাক মানে দেখা হয় না, চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 2, ঠিক আছে, এনেকৈ ধৰণে কি হৈছে এটা মানে কনষ্টিটিউশ্যনটো বনোৱাৰ আগতে এটা ডকুমেণ্ট বনাইছে যাতে মানে নিৰ্ধাৰিত কিয়া হৈছে মানে কি কি বস্তু থাকিব কি কি বস্তু নাথাকিব, ठीक है, हेतु कैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब क्या किया था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का बुक पर क्या क्या चीज़ें होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें होगा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक बुक खोलने से पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरह का चैप्टर ही पकड़ लो, ठीक है, वो आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हम लोग गठन करने जा रहे हैं, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होगा, ठीक है, तो उसको बोला गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? द राइट आंसर विल बी बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 13 डिसेम्बर 1946। डेट तो याद रखिबो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाए। Who was the chairman of constitution drafting committee? ঠিক আছে, ড্রাফটিং কমিটির মানে চেয়ারম্যান কোন আছিলে? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एस एन मुखर्जी, सी वी टी कृष्णमाचारी, डी पिंगली वेंकैया। कौन था ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन? द राइट आंसर विल बी ए डॉक्टर अम्बेडकर। एटू स्टार मार्क राखिब, एस एस सी सुधिसे, एटू माने बेलेग बेलेग एग्जामत एटू सुधिसे, ठीक है। এতিয়া হৈছে কোৱেশ্চন, হু ৱাজ কনষ্টিটিউশ্যনেল লিগেল এডভাইজাৰ? এতিয়া ইয়াতে সুধিছে চেয়াৰমেন অফ ড্ৰাফটিং কমিটি, ঠিক আছে, ইয়াতে সুধিছে কনষ্টিটিউশ্যন লিগেল এডভাইজাৰ কোন আছিলে, ঠিক আছে। অপশ্যন এ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ, বি বি এন ৰাও, সি এছ এন মুখাৰ্জী, ডি ডক্টৰ राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर विल बी 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 एन राव, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। पूछा है कि हु डिज़ाइन इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? ए पिंगली वेंकैया, बी एस एन राव, सी बी एन राव, डी सचिदानंद सिन्हा। द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी ए पिंगली वेंकैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which animal is adopted as symbol of Indian Constitution? Indian Constitution বনাৰ পিছত এটা সিম্বল মানে দিয়া হৈছে কোনটো এনিমেল? অপশ্যন এ টাইগাৰ, বি লায়ন, সি এলিফেণ্ট, ডি পিকক। দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি সি এলিফেণ্ট, ঠিক আছে। কাৰণ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য লেংদিয়েষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে। মানে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এইটোতো মানে বড় কৰা হৈছে না, যাৰ কাৰণে এইটো বেছি বড় হৈ গৈছে। এলিফেণ্ট মানে সাইজটো বড় না, তেনেকৈ আপোনাৰ সকলোকে এইটো ইয়াদ ৰাখিব পাৰিব। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसके वजह से वो बहुत बड़ा है, बल्कि है, ठीक है। तो उसके वजह से एलिफेंट को ऐसे उसका सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हेन डिड फाइनल असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड? इंडियन माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट जो असेंबली था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर आप सब लोग देने के लिए ट्राई कीजिएगा। द राइट आंसर विल बी सी 24 जनवरी 1950, ठीक है। देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हुआ था, वो केम इनटू फोर्स, उसको पूरा फुल्ली लागू कर दिया गया था। तो उसका 2 दिन पहले 24, 25, 26, ठीक है, 2 दिन पहले उसका फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल एंथेम एंड नेशनल सॉन्ग वाज एडॉप्टेड ऑन, कौन सा डेट पर हम लोग का नेशनल एंथेम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था? तो नेशनल एंथेम और नेशनल सॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तो देख रहे हैं आप सब। द राइट आंसर विल बी सी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 में क्या क्या होता है देख लो एक बार। हम लोग का नेशनल
एंथेम और नेशनल सॉन्ग को भी एडॉप्ट किया गया था। फाइनल असेंबली भी हुआ था हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन केতিয়া माने माने स्टार्ट হৈছিলে মানে কেম ইনটু ফোর্স। ঠিক আছে, এইটো মানে এইটো পুরা ফুল্লিটো इंट्रोड्यूस करा ना किंतु हाफ इंट्रोड्यूस करा হৈছিলে এইটো। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था। ठीक है, तो ए 24 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। The right answer will be B 26 নৱেম্বৰ 1949। ইয়াতে সুধিছে কেম ইনটু ফোর্স, ফুল্লি লাগু করা হৈছিলে নাই হোৱা। ঠিক আছে, এতিয়াও ঠিক আছে, ফুল্লি মানে লাগুটো হোৱা নাই, জাষ্ট এইটো মানে ইন্ট্रोड्यूस কৰা হৈছিলে। আৰু পিছত 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে। ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব, ফুল্লি লাগু কৰা হ'ব, এডপ্ট কৰা হ'ব। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া সুধিছে হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ফ্ৰম আসাম এটেণ্ডেড ইন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি। আসামৰ পৰা কিমান মানে মেম্বাৰ গৈছিলে, এটেণ্ড কৰিছিলে कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असम से कितना ऐसा मतलब मेंबर्स गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड करने के लिए? 6, 8, 10, 12। द राइट आंसर विल बी बी 8। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाए, चाह लो भाल के। अभी देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल्स था पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, किमान शेड्यूल आছিলে, ठीक আছে, स्टार्ट करार সময়তে। ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। द राइट आंसर विल बी बी 8। ठीक আছে, এতিয়াতো এক্সপান্ড হৈ গৈছে, এতিয়া কিমান আছে 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। তেতিয়া কিমান আছিলে 8 शेड्यूल 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स आছিলে। ठीक আছে, এতিয়া বাঢ়ি গৈছে। 16 number question। Hindi version of constitution was adopted on। Hindi version of Indian constitution केতিয়া एडॉप्ट হৈছিলে? ठीक আছে, 1956, 1987, 1989, 1967। The right answer will be B 1987। ঠিক আছে, এইটো চাই ল'ব। 58 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1987 অহাৰ পিছতে কি হৈছিলে, হিন্দী ভাৰ্চনটো এডাপ্ট হৈছিলে। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া গঠন হৈছিলে তেতিয়া এইটো ইংলিছত আছিলে মাত্ৰ। ঠিক আছে, কিন্তু এইটো মানে এমেণ্ডমেণ্টটো কৰাৰ পিছতেই হিন্দী ভাৰ্চনটো लागू কৰিছিলে। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पहला बना था तब वो बस किस में बना था, इंग्लिश पर बना था। बाद में जाकर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया बाय 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आज कारण लास्ट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज सेट अप ऑन। ड्राफ्टिंग कमिटी तो केতিয়া गठन करा হৈছিলে? ड्राफ्टिंग कमिटी हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब उसको सेट किया गया था? 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। ठीक है, द राइट आंसर विल बी ए 29 अगस्त 1947। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ डेट है वो हम लोगों ने आज एमसीक्यू के तौर पे रिवाइज कर लिया। तो यह इसी का अंदर से ही आएगा। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ डेट का एसोसिएटेड क्वेश्चन आ सकते तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, देखिएगा। हाँ, बाय बाय, सी यू सून।